Welcome students. So in the next exercise we will learn how to plot a rational number on a number line. So first question is the same, draw a number line and represent a rational number on it. First question is 5/7. To plot a rational number on a number line we need to first see few things before starting the actual plotting. So first thing is that we have to see if the given rational number is a positive number or a negative number. Okay, we have to see whether the given rational number is a positive number or negative number. According to that we will plot the number on that side of the number line. Okay, second thing is we will see if the given rational number is a proper rational number or improper rational number. Okay, proper rational number, improper rational number. What is a proper rational number? When numerator is smaller than the denominator, that is proper rational number. And improper rational number, when denominator is smaller than the numerator or numerator is greater than the denominator. For example, 7/5. Here the numerator is greater than the denominator, so it is a improper rational number. Okay, so these are the two things which we have to see before actually plotting the rational number. Okay, so what does positive and negative sign, why do we see a positive or negative? Because in a number line, in integers, in a number line, as you have seen that is to the right of 0 there are positive numbers and to the left of 0 there are negative numbers. So if the rational number is positive we will plot it to only in the right side. We'll just show the right side of the number line, and if it is a negative rational number it will be shown on the left side, only the left side will be shown. Okay, so positive and negative sign will decide which side of the number line we have to represent. Now proper improper, what will they show? Okay, proper rational number yani ki like this is a proper rational number where numerator is smaller and denominator is greater than numerator. Proper rational number are always, okay, always less than 1. their value is always less than 1. इसको अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो it would be some 0 point something. Okay, 0.71 maybe. ठीक है, दैट वुड बी द वैल्यू ऑफ दिस. तो अगर डेसिमल में चेंज करके 0.7 बना रहा है यानी कि इट इज़ लेस देन 1, वैल्यू इज़ लेस देन 1. सो प्रॉपर रैशनल नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन 1. तो प्रॉपर रैशनल नंबर अगर प्लॉट करने के लिए आता है तो हमें हमेशा उसे 0 से 1 के बीच में प्लॉट करेंगे हमेशा. इफ़ इट इज़ अ पॉजिटिव तो 0 से 1. इफ़ इट इज़ नेगेटिव रैशनल नंबर देन इट इज़ बिटवीन 0 एंड -1. Okay, if it is an improper rational number then we will talk later, okay, when we get a improper rational number. So starting with this question, 5/7 is we have to plot 5/7 is positive rational number and it is a proper rational number. So thus since it is positive, so we will draw a number line and on the end of it we will write 0 and 1. Why 0 and 1? Because it is a proper rational number and proper rational number always lies between 0 and 1. मतलब 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो यानी कि 0 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा. सो इट विल लाई बिटवीन 0 and 1. सो वी विल मार्क 0 and 1 towards the end of the number line. Now next thing what we'll see is denominator. What is the denominator here? 7. Whatever the denominator is you mark one less, just do one less from the denominator. So if 7 is denominator, 1 less than 7 is 6. तो जो भी 1 लेस करके आएगा उतने मार्किंग्स हमें बनानी है उस लाइन पे, नंबर लाइन में उतनी स्मॉल मार्किंग्स बनानी है. सो 7 - 1 is 6. So I have drawn 6 markings here. 4, 5, 6. These 6 markings have divided the complete line into 7 parts. Okay, so हमने इसको मार्क कर लिया. डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर जितना भी है उससे एक लेस, उससे 1 लेस मार्किंग करनी है. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 के साइड से स्टार्ट करेंगे. ओके, सब सारी मार्किंग को एक एक नंबर देना है. तो दिस विल बी 1/7. ओके, डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा जो क्वेश्चन का, 1/7. सेकेंड मार्किंग 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 एंड लास्ट वन वुड बी 7/7. 7/7 को कट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा.
1 हमने पहले से लिख रखा था. ओके, सो हमें क्या प्लॉट करना, 5/7. सी वेयर इज 5/7? इट इज़ हियर. 5/7 मिल गया. आई हैव मेड अ स्मॉल फ्लैग ओवर हियर. यू कैन मेक अ बॉक्स, अ सर्कल, a triangle, anything, and thus it has been plotted. Plotting हो गई. Okay, now moving to the next part, which is -3/4. now -3/4 is again, हमने पहले क्या देखना है, पॉजिटिव है नेगेटिव. तो दिस इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर. सो विच हैज डिसाइडेड कि यहाँ इसे हमें लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन पे प्लॉट करना है. नाउ 3/4 is a proper rational number, which means that its value is less than 1. So it will always be plotted between 0 and -1. Okay, माइनस क्यों, क्योंकि नेगेटिव है. सो 0 एंड -1. और याद रखिए, नंबर लाइन में जब हम नेगेटिव साइन डालते हैं तो इधर 0 और इधर -1 होता है. तो हम वैसे ही प्लॉट करेंगे. पॉजिटिव में डिफरेंस है. देखिए, पॉजिटिव में क्या होता है, 0 इधर और 1 इधर. तो हमने 0 इधर और 1 इधर लिखा था. इन नेगेटिव 0 इज दिस साइड एंड 1 इज दिस साइड. सो be careful about that difference also. So we have seen the sign, we have seen proper, improper. Next what we need to see is denominator. What is the denominator? 4. So 1 less than 4 is 3. Draw the line and make 3 markings on the number line. So 1 2 3. These 3 markings have divided the complete line into 4 parts. Okay, now starting from near the 0. Okay, sign का ध्यान रखेंगे. डिनोमिनेटर सबका 4 ही रहेगा. जो क्वेश्चन में डिनोमिनेटर है सबका डिनोमिनेटर वहीं रखेंगे. सो -1/4, -2/4, -3/4 एंड लास्ट वन वुड बी -4/4. इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1. सी आई हैव ऑलरेडी रिटन -1. ओके, हमें क्या प्लॉट करना है, 3/4. सो 3/4 को जहाँ पे है वहाँ पे एक फ्लैग बना के उसे मार्क कर दिया. मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ नाउ पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव रैशनल नंबर. प्रॉपर और इम्प्रॉपर. Here numerator is greater than denominator, so this is a improper rational number. अब improper rational number आ गया है तो बस एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, only one step extra. ओके, प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर रैशनल नंबर्स हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे. प्रॉपर जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं, लेकिन इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स 1 से बड़े होते हैं. ओके, इसलिए वो 0 से 1 के बीच में नहीं लाई करते हैं. तो हमें इम्प्रॉपर रैशनल नंबर को मिक्स में चेंज करना होता है टू नो कि ये किसके बीच में लाई करेगा. ओके, सो कन्वर्टिंग 19/16 इनटू मिक्स फ्रैक्शन विल गिव अस 3 होल 1/6. सो द होल पार्ट, जो होल पार्ट आता है वो हमें बताता है ये नंबर किसके किसके बीच में लाई करेगा. ये पूरा का पूरा 3 और 3 के साथ कुछ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, 1/6 लगा हुआ है कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि दिस नंबर इज गोइंग टू लाई बिटवीन 3 एंड 4. जो यहाँ पे होल पार्ट होता है उसके साथ, और नेक्स्ट नंबर जो 3 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है उसके बीच में लाई करेगा. अगर यहाँ पे 5 लिखा होता तो 5 से 6 के बीच में लाई करता. अगर यहाँ पे 9 लिखा होता तो 9 से 10 के बीच में लाई करता. जो नंबर यहाँ लिखा होगा बीच में होल नंबर, वो और उसके बाद वाले नंबर के बीच में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉल करने वाला होता है. ठीक है, आगे बिल्कुल सेम काम करेंगे. 3 ने हमें क्या बताया कि दिस इज गोइंग टू लाई बिटवीन 3 एंड 4. सो दिस साइड आई हैव रिटन 3, दिस साइड आई हैव रिटन 4. ठीक है, नाउ अगेन अब बस 3 का काम खत्म हो गया. नाउ इट इज़ व्हाट, 1/6. वी विल सी डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर इज 6, विच मीन्स वी हैव टू मेक हाउ मेनी मार्किंग्स, 1 less 5. So 1 2 3 4 5 5 markings I have made. Okay, now start from the smaller number. ठीक है, स्मॉलर नंबर 3 था तो 3 के साइड से शुरू करेंगे. जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखना है. 3 होल 1/6. 3 होल सब में लिखा जाएगा. 3 होल 2/6. सिर्फ ऊपर का न्यूमरेटर चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. 3 होल 2/6, 3 होल 3/6, 3 होल 4/6, 3 होल 5/6 एंड लास्ट वन इज 3 होल 6/6. 6/6 काटेंगे तो 1 आ जाएगा. 3 + 1 is 4. C4 इज रिटन. ओके, हमें क्या मार्क करना था, 3 होल 1/6. तो फाइंड 3 होल 1/6. वहाँ पे एक फ्लैग बना दिया, या आपने सर्कल बनाना है, जो भी बनाना है मार्क कर देंगे. दिस इज मार्क्ड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द last part of this question, which is -40/9. This is a negative improper number. Okay, as you can see it is a negative number and also it is a improper rational number. So first step पहले क्या करेंगे, we will convert this rational number into mix. So that will be -4 whole 4/9.
9. Okay, so whole part क्या आया -4, which means this number is going to lie between -4 and -5. ठीक है, यहाँ पे जो नंबर होता है उसके बाद वो नंबर और उसके बाद वाले नंबर के बीच में फॉल करेगा, तो -4 और -5 के बीच में फॉल करेगा। अब नंबर लाइन में नेगेटिव साइड में क्या होता है, -4 इधर पड़ेगा, उसके बाद -5 आता है, उसके बाद -6 आता है, तो 4 इधर 5 इधर। तो हमने जब नंबर लाइन ड्रॉ करी तो 4 -4 इधर और -5 इस साइड। ठीक है, बी केयरफुल अराउंड अबाउट वेयर यू हैव टू राइट व्हाट नंबर। नाउ व्हाट इज, उसके बाद सब कुछ वैसे ही करना है। व्हाट इज द डिनोमिनेटर, 9। सो 9 है तो कितने मार्क में बनाने हैं, 1 लेस यानी कि 8। सो स्टार्ट मार्किंग 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्किंग्स बनाए इक्वल डिस्टेंस पे। ऑलराइट, इक्वल डिस्टेंस पे 8 मार्किंग बनाने के बाद जो स्मॉलर नंबर है, मतलब ऑल दो -5 इज स्मॉलर बट हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4 के पास से शुरू करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रखना है, बस न्यूमरेटर चेंज करेंगे। ओके, सो -4 होल 1/9, -4 होल 2/9, -4 होल 3/9, -4 होल 4/9, -4 होल 5/9, -4 होल 6/9, -4 होल 7/9, -4 होल 8/9 एंड दैट वुड बी -4 होल 9/9। ठीक है, हमने सारे मार्क्स बना लिए। Now we have to plot -4 होल 4/9, तो सर्च वेयर इज -4 होल 4/9 और वहाँ पे उसे प्लॉट मार्क कर दिया। So this is how you plot rational numbers on a number line. Moving to the next question is, which of the following pairs are same rational number? Same rational number मतलब they are asking whether the given pairs are equal or not. लास्ट एक्सरसाइज में हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स पढ़े हुए हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स बस ये बताना है कि गिवन पेयर्स आर सेम और नॉट। ओके, सो ये पता करने के लिए इफ द गिवन पेयर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट, व्हाट वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बिटवीन बोथ द रैशनल नंबर्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, 2 लाइन्स खींचिए और सारे एंड्स पे ऐसे एरोज बना दीजिए, विच मीन्स कि ये वाला न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये वाला न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला न्यूमरेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो LHS में कौन सा न्यूमरेटर आ रहा है, -15। सो LHS में -15 इंटू 6 इज वॉट, -90। मल्टीप्लाई करके आंसर है -15 6 जा 90 और माइनस का साइन है तो -90। एंड देन RHS में क्या है, -5 मल्टीप्लाइड बाय 18, -5 मल्टीप्लाइड बाय 18 इज अगेन -90। इफ द आंसर ऑफ LHS एंड RHS आर सेम, अगर LHS और RHS को मल्टीप्लाई करने पे सेम आंसर आए तो ये यू विल राइट सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, सो दे आर सेम रैशनल नंबर। ठीक है, अगर LHS RHS मल्टीप्लाई करने पे सेम आता है तो दे आर सेम रैशनल नंबर और दे आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। Next part is 4/5 and 5/4. Again we will do in the same way, 4/5 comma 5/4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। LHS में 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 16 एंड RHS में 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 25। दोनों आंसर्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS सो दे आर नॉट सेम रैशनल नंबर्स। ओके, अगर LHS RHS मैच नहीं करेंगे तो दे आर नॉट सेम, अगर मैच कर रहे हैं तो दे आर सेम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द x. ओके, नाउ दे हैव गिवन यू 2 रैशनल नंबर्स but in both the rational number one value is x. Okay, and in between both the rational number they have given you equal sign. Equal sign बताता है कि both the rational numbers are equivalent. ठीक है, इक्विवेलेंट है तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करेंगे। ओके, सो x/8 इक्वल्स टू 7/8, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने बीच में इक्वल टू का साइन नहीं दिया था तो हम अप्लाई नहीं कर सकते थे। हियर दे हैव ऑलरेडी गिवन इट, सो व्हेन वी विल सॉल्व इट वी विल पुट इक्वल टू साइन बिटवीन द इक्वेशन। ओके, सो डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 से x मल्टीप्लाई हो गया, बीच में इक्वल टू का साइन, 7 से -8 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाय -8। leaving x on the left hand side, we will take 8 to the right hand side. So 7 multiplied by -8 upon 8, 8 1s are 8, 8 minus 1s are -8. Okay, so final answer is x की वैल्यू आ गई -7. Right, next question is we have to find again another part of the same question. You have to find the value of x. So question is -8/5 equals to -16/7.
So we will solve by multiplying by using cross multiplication method. Minus 8 upon 5 equals to minus 16 upon x. Cross multiplication किया, so minus 8 is multiplied by x, minus 8x is equals to minus 16 into 5. Leaving x on the LHS, we will take minus 8 to the RHS. So minus 16 upon minus 8 into 5. Minus minus कट गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, क्या बचा 2 into 5. 2 into 5. So value of x is how much? 10. Moving to the next part of the same question, that would be 12 upon x equals to minus 3. सिर्फ minus 3 दिया हुआ है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ है. So again by using cross multiplication method, if number doesn't has any denominator, we take 1 as the denominator. So 12 upon x equals to minus 3 upon 1. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, तो 12 इंटू 1 equals to minus 3 into x. Now 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और यहाँ पे माइनस का साइन भी था, ठीक है, तो माइनस का साइन याद रखेंगे, इक्वल्स टू एक्स. सो ये माइनस का साइन ऊपर न्यूमरेटर के पास पहुँच गया. माइनस 4 इज इक्वल्स टू एक्स. वैल्यू ऑफ एक्स इज minus 4. Moving to the next question, we have to compare the following rational numbers. What is greater, 0 और minus 7 upon 9. अब हम इंटीजर्स और फ्रैक्शंस दोनों चीज़ें पढ़ते हुए आए हैं, सो हमें उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ उन्हें ध्यान में रखनी है. 0 और पॉजिटिव नंबर में क्या बड़ा होता है? ऑब्वियसली पॉजिटिव रैशनल नंबर. सो वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, सो 7 upon 9 इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी अप्लाई की है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 upon 17 एंड 13 upon 17 में व्हाट इज ग्रेटर. तो जब आपको फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी पता है, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स सेम है, तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करने पे 11 और 13 में क्या बड़ा है? 13. सो 11 upon 17 इज लेस देन 13 upon 17. ओके, रैशनल नंबर विथ सेम डिनोमिनेटर्स, ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर फ्रैक्शन. जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा. नेक्स्ट मूविंग ऑन, माइनस 7 upon 12 एंड 6 upon minus 12. नाउ जस्ट कीप इन माइंड कि जब भी हम इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस का साइन डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए. ठीक है, माइनस का साइन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पास ऑन कर देते. कैसे पास ऑन कर देते हैं याद है? 6 upon minus 12 कैसे पास कर सकते हैं? -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, दैट विल गिव अस -6 upon 12. ओके, सो -6 upon 12. वो स्टेप दिखाया नहीं है, आप चाहें तो दिखा भी सकते हैं. सो इन नेगेटिव नंबर्स स्मॉलर डिजिट इज ग्रेटर. जब नेगेटिव नंबर्स को कंपेयर करना होता है तो द स्मॉलर वैल्यू, जो भी स्मॉलर वैल्यू होती है वहीं एक्चुअली में बड़ी वैल्यू होती है. तो -6 और -7 में -6 छोटा दिख रहा है मगर एक्चुअली वो बड़ा है. देयरफॉर -7 upon 12 इज लेस देन -6 upon 12. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर रैशनल नंबर्स. अगेन वी हैव टू कंपेयर रैशनल नंबर्स, बट व्हाट इज द डिफरेंस in question number 4 and 5 is that here the denominators are different. So we will start, we have to compare -5 upon 7 and 4 upon -5. Okay, we can do this comparison when denominators are different in two ways. First is cross multiplication method and next method is the one which we have learned in fractions. क्या था वो? LCM को डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है by taking LCM. सो इन दिस पार्ट वी विल डू बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. पहले तो हमने क्या किया, सबसे पहले -5 upon 7 एंड बीच में एक बॉक्स बना दिया एंड 4 upon -5. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, अगेन वन थिंग कीप इन माइंड, -5 is in denominator, minus is in denominator, so we will move it to the numerator. Okay, so next step I moved it in the denominator, -5 upon 7 box -4 upon 5. Then do the cross multiplication. So -5 multiplied by 5, -5 multiplied by 5 will give you -25. और RHS में -4 multiplied by 7 will give you -28. तो दो आंसर्स आए, -25 -28. व्हाट इज ग्रेटर, -25 या -28? -25. अगर -25 ग्रेटर है विच मीन्स -25 ग्रेटर, -25 किसका आंसर था? इसका. LHS में न्यूमरेटर क्या है? LHS में न्यूमरेटर -5 upon 7 है. ओके, सो -5 upon 7 इज ग्रेटर देन 4 upon -5. ठीक है, जिस तरफ की वैल्यू ग्रेटर है वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया. दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ऑफ कंपेयरिंग नंबर्स. ओके, नेक्स्ट इज next part of the same question, 7 upon 12 and -6 upon -9. So we have to compare this 7 upon 12
and make a box in between, and minus 6 upon minus 9. Since minus are there in numerator and denominator, we will cancel it out. तो cancel होने के बाद minus 7 upon 12, then box 6 upon 9. The number has become 6 upon 9. Now this part I have done by taking LCM. We will take LCM of 9 and 12. So LCM of 9 and 12 is 36. Draw the line. 36 एक बार लिखेंगे डिनोमिनेटर में और फिर चेक करेंगे 36 12 के टेबल में कितनी बार आता है. 36 12 के टेबल में 3 टाइम्स आता है. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3. देन मेक अ बॉक्स अगेन. 36 9 की टेबल में कितने टाइम्स आता है. 36 9 की टेबल में 4 टाइम्स आता है. तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 4. ओके. So 7 3s are 21. Make a box in between. 6 4s are 24. What is greater 21 or 24? 24. So 24 की तरफ हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया और जैसे में ग्रेटर नंबर मिल गया हम ओरिजिनल फ्रैक्शंस को वहाँ पे लिख देंगे. तो इस साइड क्या था शुरुआत से इस साइड कौन सा फ्रैक्शन था 7 upon 12. So 7 upon 12 in place of 21 and minus 6 upon minus 9 in place of 24. That is, so minus 6 upon minus 9 is the greater fraction. Next question is we have to compare 7 upon minus 13 and minus 25 upon 91. Okay, so again we will do it by taking LCM. 7 upon minus 13, make a box, minus 25 upon 91. We will take this minus sign in the numerator, so minus 7 upon 13, make a box, minus 25 upon 91. Now take LCM of 13 and 91. So LCM of 13 and 91 would be 91. So कैसे करना है, draw a line and write 91 और LCM in the denominator. 13 के टेबल में 91 7 टाइम्स आता है तो न्यूमरेटर को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो न्यूमरेटर है minus 7 मल्टीप्लाइड बाय 7. मेक अ बॉक्स अगेन. 91 की टेबल में 91 1 बार आता है तो न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो minus 25 मल्टीप्लाइड बाय 1. सॉल्व इट. minus 7 into 7. So minus 7 into 7 is minus 49 and minus 25 into 1 is minus 25. Now minus 49 and minus 25 both are negative numbers. So what is greater? Minus 25 is greater. Okay, so since right hand side is greater, so we will put the original rational numbers. 7 upon minus 13 is less than minus 25 upon 91. Okay, now moving to the next question. Question number 6 says we have to arrange in ascending order. These type of questions we have already done in fractions. Okay, but here what is the difference is that it also includes negative numbers and positive numbers. All kind of numbers are included in rational numbers. So we have to arrange the given fractions given rational numbers into ascending order. So first of all we'll take LCM of the rational numbers. Okay, the denominator. So 8, 4, 12, 16. What is the LCM of these numbers? 48. Draw a line, write 48. Now 8 की table में 48 comes 6 times. So minus 11 into 6, comma. In table of 4, 48 comes 12 times. So 3 multiplied by 12, comma. In 12 table 48 comes 4 times. So minus 7 multiplied by 4, comma. In 16 table 48 comes 3 times. So 9 multiplied by 3. Now multiply everything up. 11 6 minus 66. 3 into 12 36 minus 7 into 4 minus 28. 9 into 3 27. So now see, we have got 2 negative numbers and 2 positive numbers. हमें ascending order में arrange करना है. तो ascending order is what? Smaller to greater. So first of all we'll among positive and negative numbers are smaller. तो हम पहले negative numbers को compare करेंगे. 66 and 28, what is smaller? 66. So minus 66 is smallest. Then उसके आगे साइन लगाएंगे ग्रेटर दैन का. आफ्टर दैट minus 28. ठीक है, दोनों नेगेटिव नंबर्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. देन आफ्टर दैट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इज 27 एंड आफ्टर दैट 36. सो दिस इज द वे वी हैव अरेंज्ड ऑल द रैशनल नंबर्स. नाउ ये तो हमने चेंज करके नंबर्स लिखे हैं. नाउ ओरिजिनली हमें ओरिजिनल फ्रैक्शंस भी तो लिखने हैं. 66 सबसे पहले आया, एक स्टेप ऊपर चेक करना होता है बस. ठीक है, 66 किस प्लेस पे है? फर्स्ट प्लेस पे. एक स्टेप ऊपर कहाँ? एक स्टेप ऊपर किधर किस प्लेस पे है? फर्स्ट प्लेस पे है. तो जो क्वेश्चन में फर्स्ट रैशनल नंबर है वो हम सबसे पहले लिख देंगे -11/8. फिर
ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, देन व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, -28, एक स्टेप ऊपर जाएंगे, -28 किस प्लेस पे है, 1 2 3 थर्ड प्लेस पे है, तो थर्ड प्लेस पे कौन सा रैशनल नंबर लिखा हुआ था, -7/12, तो -7/12 लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे, उसके बाद क्या रहा है 27 इससे एक स्टेप ऊपर किस प्लेस पे था, लास्ट, तो क्वेश्चन में हम लास्ट में जो लिखा हुआ है वो नंबर उठाएंगे, 9/16, ओके, एंड देन लास्ट वन 36 एक स्टेप ऊपर किस प्लेस पे था, सेकेंड प्लेस में, तो क्वेश्चन से जो सेकेंड रैशनल नंबर है वो उठाएंगे 3/4, ओके, एंड thus we have arranged all the rational numbers in ascending form. Next question is you have to write the absolute value of the given rational numbers. So absolute values क्या होती हैं, हमें जो भी rational number दिया हो उसमें से नेगेटिव साइन हमें रिमूव करना होता है. सो -13/8 का एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी 13/8, -8/13 का एब्सोल्यूट वैल्यू, सो अगर -8/13 देखें, सो माइनस माइनस साइन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 8/3 13 8/3 8/3 इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ओके, सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 8/3 इज 8/3. जो पॉजिटिव नंबर है उसको पॉजिटिव भी रखना है, जो नेगेटिव है उसे ही पॉजिटिव बना सकते हैं, ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वी हैव टू अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. बिल्कुल सेम वे में करना है जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर वाला किया था, बस आखिरी में उसे डिसेंडिंग में अरेंज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स आर गिवन 7/-8, -9/12, -1/3, -5/6. सो इसमें फर्स्ट रैशनल नंबर में 8 डिनोमिनेटर है और डिनोमिनेटर के साथ माइनस का साइन लगा, तो उसे हम ऊपर मूव कर देंगे 7 के साथ. नाउ टेकिंग एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, 8, 12, 3, 6, डिनोमिनेटर इज 48, ओके. सो अगेन जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे. 48 8 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स, सो -7 मल्टीप्लाइड बाय 6, 48 12 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, सो -9 मल्टीप्लाइड बाय 4, 48 3 के टेबल में आता है 16 टाइम्स, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 16, 48 6 के टेबल में आता है 8 टाइम्स, सो -5 मल्टीप्लाइड बाय 8. मल्टीप्लाइंग एवरीथिंग अप, -7 into 6 is 43, -9 into 4 is 36, 1 into 16 16, -5 into 8 is -40. Now we have to arrange all the numbers in what, डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर. सो 3 नेगेटिव नंबर्स है, एक पॉजिटिव नंबर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव में तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, तो सबसे पहले तो पॉजिटिव नंबर लिख लिया. देन आउट ऑफ द 3 नेगेटिव रैशनल नंबर्स, 3 नंबर्स जो 3 नेगेटिव नंबर्स हैं उसमें से सबसे छोटा वाला सबसे बड़ा होगा, ठीक है. सो -36 उसके बाद आएगा, देन -40 आएगा, देन -42 आएगा. नाउ वी हैव अरेंज्ड ऑल द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. अब हम उनके ओरिजिनल फ्रैक्शंस उनकी जगह लिखना है. सो 16 इज द फर्स्ट, एक स्टेप ऊपर देखेंगे 16 कहाँ पे था, थर्ड प्लेस पे था, तो ओरिजिनल क्वेश्चन से थर्ड प्लेस का फ्रैक्शन उठाएंगे, 1/3 ग्रेटर देन -36 एक स्टेप पहले वो कहाँ पे था, सेकंड पोजीशन पे था, तो सेकंड पोजीशन का फ्रैक्शन -9/12, देन ग्रेटर देन -40 एक स्टेप पहले कहाँ पे था, लास्ट में, सो वहाँ पे उठाएंगे -5/6 ग्रेटर देन, और उसके बाद लास्ट में क्या बचा, 7/-8. Thus the given rational numbers have been arranged in the descending order. That would be all for this exercise. If there is any confusion, you can always ask.